Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Again, I am Dr. Nadra Hamid and we are going to discuss the topic of trachea and lungs today. Learning objectives for the lecture are pleura and its divisions, pleural recesses. We will be talking about pleural recesses and their importance. I will tell you about a bit about pleurisy, lungs and its surfaces and borders will be discussed, bronchopulmonary segments, and we'll study about the neurovascular supply of the lungs. Okay, you may know about the pleura that it is each lung it is covered or each lung is invested by an exceedingly thin, delicate serous membrane that is called pleura, which is arranged in the form of closed invaginated sac. So this is all pleura. The pointer is showing the pleura, and the lungs are placed within the pleura. But the pleura has got two parts, parietal layer and visceral layer. That portion of the serous membrane means that portion of the pleura that covers the surfaces of the lung. The surface of the lung, it is adherent, it is tightly adherent to the lung and you cannot separate it from the lung. And it also dips into the fissures between its lobes, means the uh, uh, and lobes. I will tell you about the lobes and fissures, but you can see this is the lobe of the lung, this is the lobe of the lung, this is the lobe of the lung, and these partition a type of uh, deep cuts, you can say, in lungs are called fissures. So it is also dipping into the fissures, and that is known as pulmonary pleura or visceral pleura. The rest of the membrane that lines the inner surface of the chest wall, वो जो आपको मैंने कॉस्टल केज पढ़ाया, thoracic केज पढ़ाया था, उसके इंटरनल सरफेस पे पूरा का पूरा कवरिंग लेयर जो होती है that of parietal pleura. It is covering the superior surface of the diaphragm. That that diaphragm that is facing the thoracic cavity, and it is reflected over the structures occupying the middle of the thorax. And here, like, this is the middle of the thorax, so here all the structures present here are covered by the parietal pleura, and that portion is called mediastinal pleura. We will talk about it later, okay? And uh, all the things here which I mentioned are covered by a layer of pleura that is called parietal pleura, okay? These two layers are continuous with each other around, but and below of the root of the lung. What is the root of the lung? Here where the structures are entering and leaving the lung is called root of the lung. We'll talk about it later. In healthy individuals, they are in actual contact with one another. They are like very much close to one another, but there is small space between them, that is known as pleural cavity. See this diagram. This is the cut portion of the pleura and lung, okay? This outer layer is parietal pleura, this inner layer is visceral pleura, and in center you are having this thin pleural cavity. So this is the pleural cavity. You can imagine that how the pulmonary and that is the visceral and parietal pleura are arranged. Just imagine that you are putting a fist in a half fluid filled balloon, ठीक है? आपने इसमें एक fist जो है वो इसके अंदर इमेजिनेट किया. Take this fist as lung. It is like continuously you are continuously imaginating the balloon. So लाइक कि आपके फिस्ट के अराउंड भी एक बैलून की लेयर बन जाती है और फिस्ट के जो बिल्कुल एडहेरेंट होती है, एंड दिस आउटसाइड दैट इज अ बिट एट अ डिस्टेंट लेवल, ये आपका पेराइटल प्लूरा बन जाता है, ठीक है? सो इस तरह से ये लंग्स जो है वो प्लूरा में अरेंज्ड हैं, दैट दिस इज द पेराइटल लेयर and the fist is covering by a layer of the balloon that is
the visceral layer, and in center here this space, the light blue space, this is actually the pleural cavity, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है, जो आपका रिस्ट वाला एरिया है, रिस्ट तक, इसको ले लें, टेक दिस एज द पल्मोनरी लिगामेंट, रूट ऑफ द लंग, सॉरी, रूट ऑफ द लंग, जहाँ पर अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। एट द एंड इन दोनों को ऐसे मिला लें, ठीक है। हेयर एट द रूट ऑफ द लंग, ये दोनों लेयर्स जो है आपको नजर आ रही हैं, दोनों मिले हुए हैं, ठीक है, लाइक दिस एंड लाइक दिस। सो द आउटर वन इज पैराइटल प्लूरा, दिस, द inner one covering the fist closely is the visceral pleura, and in the center you are having this pleural cavity. अब इसको देखें, thoracic wall that is covering by parietal pleura, the lungs that are covering by the visceral pleura, and in center you are having the pleural cavity. Parietal pleura is the portion of the pleura that is external to the pulmonary pleura, means जो visceral pleura के बाहर होता है, ये आपने पढ़ा, lines the inner surface of the chest wall. It covers the diaphragm, that portion of the diaphragm that is facing towards the thoracic cavity, and it is reflected over the structures occupying the middle of the thorax. अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है। Parietal pleura line the thoracic wall, the superior surface of the diaphragm, and separates the pleural cavity from the mediastinum. Mediastinum को आप ऐसे लेने कि जो टू लंग्स के बीच में सेंटर पोर्शन है, ठीक है, the central partition between the two lungs, उसको हम mediastinum बोलते हैं। So all the structures containing, including the heart, are included in the mediastinum. Different portion of the parietal pleura have received different names. अब ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि parietal pleura इसको कवर करता है, उसको कवर करता है, all these areas have got separate names for it, okay. So for example, that portion of the parietal pleura which lines the inner surfaces of the ribs and intercostal muscles, जो रिब्स की इंटरनली जो कवरिंग है parietal pleura की, उसको हम बोलेंगे costal pleura। वो वाले parietal pleura का portion that is covering the diaphragmatic pleura, the diaphragm, superior surface of the diaphragm, that is called diaphragmatic pleura, and that pleura which is rising from the neck over the lung is called the copula of the pleura, means it is cervical pleura। जो थोड़ा सा फर्स्ट रिब के थोड़ा सा ऊपर आपको नजर आता है, डोम, ऐसे डोम शेप्ड लंग्स, उसके ऊपर एक parietal pleura की लेयर भी होती है, that is called cervical pleura। एंड सेंटर में जो आपके पास mediastinum है, उसको जो कवर कर रहा है, that is called mediastinal pleura। So four parts: costal pleura, diaphragmatic pleura, cervical pleura, and mediastinal pleura. So just see this diagram. The blue layer is showing you the parietal pleura, and this greenish one is showing you the visceral pleura covering the lungs tightly. Okay. Now, if we come towards the different divisions of the pleura, ये वाला जो पोर्शन है, look at the pointer, जो कि लंग्स के बिल्कुल मीडियल साइड पे है, ये ब्लू ब्लू नजर आ रहा है आपको, हेयर, ठीक है। ये हार्ट है, ये हार्ट जैसे पड़ा हुआ है, और ये वाला पूरा पोर्शन जो सेंटर है दोनों लंग्स का, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड मीडियास्टिनम, ठीक है। इस मीडियास्टिनम को जो आउटसाइड कोई कवरिंग कर रहा है पैराइटल प्लूरा का पोर्शन, हेयर एंड हेयर, दिस पोर्शन ऑफ पैराइटल प्लूरा इज कॉल्ड मीडियास्टिनल प्लूरा, ठीक है, टेल हेयर, ठीक है। अब ये जो आपको ऊपर की तरफ नेक की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, दिस डोम शेप्ड पैराइटल प्लूरा, दिस इज कॉल्ड सर्वाइकल प्लूरा। सर्वाइकल प्लूरा हो गया, mediastinal प्लूरा हो गया, एंड नाउ कमिंग टुवर्ड द लेटरल साइड हेयर, ये जो आपको नजर आ रहे हैं साइड वाइज ब्लू ब्लू, दिस इज एक्चुअली कॉस्टल प्लूरा, ठीक है। कॉस्टल कार्टिलेजेस को, रिब्स को और इंटरकॉस्टल मसल्स को कवर कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉस्टल प्लूरा। अब ये डिप हो रहा है, एंड अगेन इट इज कवरिंग द सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम लाइक दिस हेयर, सो दिस इज कॉल्ड डायफ्रामेटिक प्लूरा। अब ये सारा एक ही पैराइटल प्लूरा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जगह चेंज होने की वजह से उनके नाम चेंज है। फॉर एग्जांपल, इफ इट इज कवरिंग द mediastinum, इट इज कॉल्ड mediastinal प्लूरा। इफ इट इज गोइंग इनटू द सर्वाइकल रीजन, नेक की रीजन पे जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड सर्वाइकल प्लूरा। इफ इट इज इन कांटेक्ट विद द रिब्स एंड इंटरकॉस्टल मसल्स, इट इज कॉल्ड कॉस्टल प्लूरा।
and if it is coming and covering the diaphragm from superior surface, it is called diaphragmatic pleura. ठीक है, so this is all about the pleura, parietal pleura. Now we are coming towards the recesses of the pleura. Recesses of the pleura, like we are having two recesses, costodiaphragmatic recess. Recess means it is actually कि एक स्लिट लाइक स्पेस है, दो पेराटल प्लूरा जहाँ पर चेंज मतलब पेराटल प्लूरा एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जब चेंज होता है, देन इट इज कॉल्ड एक सर्टन थोड़ा सा एक गैप बनाता है, दैट इज कॉल्ड रीसेस. ठीक है, सो कॉस्टोडायफ्रामेटिक मीन्स you are talking about the costal pleura and diaphragmatic pleura. So the lower area of the parietal cavity into which lung expands on inspiration is referred to as costodiaphragmatic recess. अब यहाँ से देखें, ठीक है, दिस इज दी रेडिश वन जो लिखा हुआ है आपको ये नजर आ रहा है कॉस्टोडायफ्रागमेटिक रीसेस. इसका मतलब ये है कि जब पेराइटल प्लूरा जो है वो डिप करता है एज कॉस्टल प्लूरा, ठीक है, कॉस्टल प्लूरा जो है वो नीचे जाके जैसे ही सुपीरियरली डायफ्राम को कवर करने के लिए ऊपर मूव करता है, हेयर अ स्लिट लाइक स्पेस इज formed that is known as costodiaphragmatic recess. costodiaphragmatic recess, ठीक है, इनके बीच में सिर्फ एक कैपिलरी लेयर ऑफ द फ्लूइड का फर्क होता है. ठीक है, जब इंस्पिरेशन होती है देन द लोअर मार्जिन ऑफ द लंग्स डिसेंड इनटू द रिसेस. इंस्पिरेशन पे लंग्स एक्सपेंड लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं, सो उनकी जो ये लोअर पोर्शन है वो इस रिसेस की तरफ जो है वो एक्सटेंड करते हैं. ठीक है, ये वैसे एक छोटी सी बहुत स्मॉल थिन स्पेस है, इतनी ज़्यादा बड़ी स्पेस नहीं, लाइक यू आर जस्ट सीइंग अ डायग्राम, आपको लगे कि बहुत बड़ी स्पेस है. ठीक है, इतनी बड़ी नहीं है, स्मॉल स्पेस है, बट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द लंग्स आर लाइक डिपिंग टूवर्ड्स द स्पेस. ठीक है, दीज आर द लंग मार्जिन जो इसमें डिप करते हैं. During expiration, the lower margin of the lung ascends so that the costal and diaphragmatic pleura come together again. जब लंग्स एक्सपिरेशन के दौरान एक्सपायरेशन के दौरान जब ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो ये स्पेस अगेन जो है वो क्रिएट हो जाती है, एंड द कॉस्टल एंड डायफ्रामेटिक एंड कॉस्टल प्लूरा कम इन टू कॉन्टैक्ट अगेन. ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन मीन्स, प्लूरल इफ्यूजन को हम इस तरह बोलते हैं कि जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड जब अकोमुलेट होता है, ठीक है, उसको हम प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं. ठीक है, excessive amount of pleural fluid because of any reason, many diseases, so many diseases, ठीक है, उसकी वजह से pleural effusion होता है. ठीक है, so it collect in the costodiaphragmatic recess when in standing position. जब मतलब खड़ा होता है और उसको ऐसे कोई कंडीशन होती है जिसमें उसको प्लूरल इफ्यूजन हुआ हुआ है, तो जितना भी स्टैंडिंग पोजीशन में उसका प्लूरल इफ्यूजन का जो फ्लूइड है, ठीक है, वो सारा इन रिसेसेस में इस कॉस्टोडायफ्रागमेटिक रिसेस में कलेक्ट हो जाता है. ओके, कॉस्टोमेडिएस्टिनल. ठीक है, अब एज द नेम सजेस्ट इट इज बिटवीन द कॉस्टल प्लूरा एंड मेडिएस्टिनल प्लूरा. अब यहाँ से देखें, ठीक है, इट इज सिचुएटेड अलोंग द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द प्लूरा. जब कॉस्टल सॉरी जब ये फ्रंट पे, ये आपको कट सेक्शन नजर आ रहा है, ठीक है, फ्रंट पे जैसे ही ये कॉस्टल प्लूरा टर्न होता है टुवर्ड्स द मिड लाइन and it is known as mediastinal pleura. So anteromedially जब टर्न होता है parietal pleura anteromedially, then सेंटर में एक रिसेस बन जाता है बिटवीन कॉस्टल एंड mediastinal pleura. ठीक है, एंटीरियरली जब एंटीरियरली जो है ये कॉस्टल प्लूरा जो है वो शार्प टर्न लेता है टुवर्ड द मीडियल साइड ऑफ द मीडियस्टिनम और द थोरेसिक कैविटी. ठीक है, सो उन दोनों के बीच में एक रिसेस बन जाता है, दैट इज नोन एज कॉस्टोमेडिएस्टिनल रिसेस. ठीक है, दे आर लाइक स्लिट लाइक स्पेसेस बिटवीन द कॉस्टल एंड द मीडियस्टिनल पैराइटल प्लूरा, and it is also separated by a capillary layer of pleural fluid. बहुत thin amount of pleural fluid होता है. ठीक है, here you can see the diaphragmatic costodiaphragmatic recess जो डार्क ब्लू शो हुआ है, the costomediastinal recess. और during inspiration and expiration
यहाँ पर एंटीरियर बॉर्डर्स ऑफ द लंग जो है वो इस रिसेस में स्लाइड करते हैं, ठीक है। लाइक जो हमने पढ़ा था हेयर लंग की जब इंस्पिरेशन होती है तो लंग इस कॉस्टोडायफ्रामेटिक रिसेस की तरफ आते हैं, और जब एक्सपीरेशन होती है तो यहाँ से मूव करके ऊपर चले जाते हैं। बट हेयर इन द कॉस्टोमीडियस्टल रिसेस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द एंटीरियर बॉर्डर्स ऑफ द लंग्स वो इन इस कॉस्टोमीडियस्टल रिसेस ऑन द वन साइड एंड द अदर दोनों में स्लाइड करते रहते हैं। Now see, this diagram is again showing you this option, these recesses. This is costomediastinal. यहाँ से देखिए, here the costal pleura is shown in the cut section, ठीक है। जैसे ही ये costal pleura इस mediastinal pleura की तरफ turn होता है to become the mediastinal pleura, ये center में आपको नजर आ रहा है कॉस्टोमीडियस्टल रिसेस, ठीक है। इसमें लंग्स जो है वो एंटीरियर बॉर्डर इसके फिक्स होते हैं। और हेयर द कोस्टल प्लूरा व्हेन इट गोज अपवर्ड ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम, हेयर आपको दोनों नजर आ रही है, कोस्टल प्लूरा है और ये डायफ्रामेटिक प्लूरा है, तो बीच में ये एक स्पेस से क्रिएट हुई है, दिस इज कॉल्ड कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस। विस्टल प्लूरा इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द लंग्स, ठीक है, टाइटली, ऐसा टाइटली कि आप उसको उससे सेपरेट नहीं कर सकते, एज अपोज टू द पैराइटल प्लूरा विच इज अटैच्ड टू द अपोजिंग थोरेसिक कैविटी, ठीक है। जो पैराइटल प्लूरा है उसको आप थोरेसिक कैविटी से फिर भी सेपरेट कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट सेपरेट द विस्टल प्लूरा फ्रॉम द लंग्स। The space between these two delicate membranes, that is the parietal and visceral pleura, is known as intrapleural space, means pleural cavity. The inner pleura, that is the visceral pleura, covers the lungs and adjoining structures, that is blood vessels, bronchi and nerves. जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं लंग्स के अंदर, दैट आर द ब्रोंकाई, either that are the smallest blood vessels, nerves, veins, lymphatics, each and everything that is present inside the lungs, that are all things are covered by visceral pleura inside the lungs. Now coming toward the pulmonary ligament, ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज द मीडियल सरफेस ऑफ द लंग, ठीक है। ये लंग का मीडियल सरफेस है। इसमें होता क्या है कि ये एक स्ट्रक्चर है, हेयर जो पॉइंटर आपको शो कर रहा है, ये इसको बोलते हैं हाइलम ऑफ द लंग, ठीक है। ये वाला है पोर्शन, ये सारा जिसमें ये आपको रेड ब्लू ग्रे चीजें नजर आ रही हैं, दिस इज नोन एज हाइलम ऑफ द लंग। ये जिस एरिया में एंटर हो रहा है हेयर, ये जो आपको पॉइंटर मूव करता है, जो आउटसाइड एक इसका एक एरिया बना हुआ है, एक ओपनिंग से बनी हुई है लंग में मीडियल साइड पे, दिस इज कॉल्ड रूट ऑफ द लंग, ठीक है। द रूट ऑफ द लंग इज कवर्ड इन फ्रंट, ठीक है, सामने से, above and behind, this is all pleura, ठीक है। ये posterior, superior and anterior, ये पूरा pleural covering है, ठीक है। and that at its lower border the investing layers come into contact, जितनी भी प्लूरा के डिविजन्स हैं, ठीक है, जैसे इसमें तो विस्फल प्लूरा होता है। अब ये मीडियल सरफेस ऑफ दी लंग है, ठीक है। अब फ्रंट से जो आ रहा है मीडियस्टल प्लूरा, हेयर द सर्वाइकल प्लूरा, हेयर द कोस्टल प्लूरा, नीचे से भी मीडियस्टल है, ठीक है। ये सारे के सारे दे कम इन कांटेक्ट विद द लंग एट द रूट ऑफ द लंग, ठीक है। ये सारे रूट ऑफ द लंग पे इकट्ठे हो जाते हैं। हेयर दी फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ मेसेंटेरिक फोल्ड। आपको मेसेंटेरिक फोल्ड किस तरह से समझा सकते हैं कि एक स्लीव लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। मीन सारे के सारे जो प्लूरा है, जो डिविजन ऑफ द प्लूरा है, वो सारे एट द रूट ऑफ द लंग मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, कंबाइन हो जाते हैं, एंड दे आर फॉर्मिंग स्लीव लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड स्लीव लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो वो डाउनवर्ड जो है वो एक्सटेंड करता है, दिस इज एंड दिस लेवल इज नोन एज पल्मोनरी लिगामेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी लिगामेंट। इसमें सारे के सारे प्लूरल डिवीजन जो है वो इकट्ठे हुए हैं। हियर वी फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ मेसेंटेरिक फोल्ड, द पल्मोनरी लिगामेंट which extends between the lower part of the mediastinal surface of the lung and pericardium. So इधर जो है वो mediastinal साइड पे डिप कर जाते हैं, this sleeve like structure, again this sleeve like structure is dipping
downward on the mediastinal surface of the lung. This is called pulmonary ligament. ठीक है, just above the diaphragm the ligament ends in a free falciform border. ये यहाँ diaphragm होता है, तो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है here, ये ब्लाइंड एंडेड पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड फेल्सिफॉर्म बॉर्डर. ठीक है, इसको बोलते हैं फेल्सिफॉर्म बॉर्डर. इट सर्व्स टू रिटेन द लोअर पार्ट ऑफ द लंग इन पोजीशन. ये जो लोअर पोर्शन ऑफ द लंग है इसको एंकर करता है. ठीक है, इसको अपने पोजीशन पे जो है वो सपोर्ट करता है. Nerve supply. The parietal pleura has got different nerve supply and vistral pleura has got different nerve supply. Okay. The parietal pleura is sensitive to pain, temperature, touch and pressure. ठीक है, और उसमें होता क्या है कि जो different areas पे parietal pleura cover कर रहा है ना, वो उसी एरिया की नर्व सप्लाई भी लेगा. अब जैसे costal pleura is segmentally supplied by intercostal nerves, means कोस्टल प्लूरा जिस जिस इंटरकोस्टल स्पेस को कवर करेगा उसी एरिया को सप्लाई करेगा. फॉर एग्जांपल द कोस्टल प्लूरा प्रेजेंट एट द इंटरकोस्टल स्पेस नंबर 1, तो इंटरकोस्टल नर्व जो वहाँ प्रेजेंट होगी. ठीक है, 2, 3, 4 जितने भी हैं उन सब में जो है वो सेगमेंटली अपने अपने इंटरकोस्टल नर्व उसको सप्लाई करेंगे. मिडगेस्टिनल प्लूरा जो है, जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, इट इज सप्लाइड बाय फ्रीनिक नर्व. ठीक है, क्योंकि वो वहीं से पास होकर नीचे डायफ्राम की तरफ आ रही है. दैट्स व्हाई फ्रीनिक नर्व जो है वो मिडियस्टिनल प्लूरा को सप्लाई कर रही है. द डायफ्रामेटिक प्लूरा, जैसे हमने डायफ्राम में पढ़ा था कि डोम्स पे उसकी सप्लाई थी फ्रीनिक नर्व, एंड अराउंड द पेरिफेरी इट वाज सप्लाइड बाय लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व्स. सो हियर आल्सो द पैराइटल प्लूरा, दैट इज डायफ्रामेटिक प्लूरा, जब बन जाता है, then it is also supplied over the domes by phrenic nerve and around the periphery by lower 6 intercostal nerve, just as we studied in diaphragm. Okay, उसी की तरह nerve supply है. Now coming towards the visceral pleura, ये वो है जो कि lungs को cover करता है. ठीक है, जो lungs की nerve supply होगी वो उसी की nerve supply होगी. The visceral pleura covering the lungs is sensitive to stretch. वो सिर्फ स्ट्रेच के लिए सेंसिटिव. इट इज नॉट सेंसिटिव और इनसेंसिटिव टू कॉमन सेंसेशन सच एज पेन एंड टच. ठीक है, लंग्स का जो विस्ट्रल प्लूरा है, इट इज नॉट सेंसिटिव टू पेन एंड टच, इट इज ओनली सेंसिटिव टू स्ट्रेच. ठीक है, इट रिसीव्स एन ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई फॉर पल्मोनरी प्लेक्सस. ठीक है, ऑटोनॉमिक मींस सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई है जो कि पल्मोनरी प्लेक्सस से जो है वो इसको डिराइव होती है. सो विस्ट्रल प्लूरा की ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई है और पैराइटल प्लूरा की जो है वो डिफरेंट एरियाज पे डिफरेंट नर्व सप्लाई है डिपेंडिंग अपॉन द एरियाज वेयर इट इज लोकेटेड. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द प्लूरल फ्लूइड. प्लूरल स्पेस जो हमने पहले पढ़ी थी बिटवीन द पैराइटल प्लूरा एंड द विस्ट्रल प्लूरा, that is containing normally 5 to 10 ml of clear fluid, that is known as pleural fluid. ठीक है, पैराइटल प्लूरा और विस्ट्रल प्लूरा के बीच में ये आपको ग्रेश पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड प्लूरल स्पेस, प्लूरल कैविटी. इसमें प्लूरल फ्लूइड होता है, दैट इज almost 5 to 10 ml of pleural fluid. It actually lubricates the opposing surfaces of the vistral and parietal pleura during respiration. respiration के दौरान ये जो पैराइटल और विस्ट्रल प्लूरा के अपोजिट सरफेसेस हैं वो उनको कवर करता है. The formation of fluid results from hydrostatic and osmotic pressures between the capillaries. दोनों साइड्स पे जो जो कैपिलरीज में प्रेशर डिफरेंस होता है, that is hydrostatic and osmotic pressures, because of that this fluid formation occurs. Okay, the pleural fluid is normally absorbed into the capillaries of the visceral pleura. It is actually जितना formation हो रही है, तो accordingly to maintain the balance, the capillaries present in the visceral pleura, the fluid is absorbed. ठीक है, but any condition that increases the production of the fluid, या तो कोई ऐसी डिजीज हो जिसकी वजह से फ्लूइड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही हो, और समथिंग इज हैपनिंग दैट इज इम्पेयरिंग द ड्रेनेज ऑफ द फ्लूइड, जिसकी मतलब कोई ऐसी डिजीज़ है या तो उसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, या कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही. ठीक है, दोनों में से कोई भी एक रीज़न, it results in abnormal accumulation of the fluid, that is called pleural effusion. जो मैंने आपको पहले बताया, fluid accumulation in the pleural cavity is called pleural effusion. So any reason, कोई भी रीज़न, या तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है
या उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो रही है, सो रिजल्टिंग इन accumulation of the fluid that is called pleural effusion. The presence of 300 ml of fluid in the costodiaphragmatic recess in an adult is sufficient to enable its clinical detection. Means अगर कोई भी adult में standing position पे आपको costodiaphragmatic recess में 300 ml of fluid मिले, so then you are able to detect the pleural effusion clinically. डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि आप आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे डिटेक्शन होती है, कैसे डायग्नोसिस होती है. ओके, क्लिनिकल नोट्स में you will discuss about the pleurisy. So here you are seeing the normal lungs, okay, like this. ये कट सेक्शन है, ठीक है. टू प्लूरल लेयर्स सराउंड लंग्स एंड डायफ्राम जो है उसका क्रॉस सेक्शन सारा. बट हेयर द प्लूरिसी दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा, ठीक है. किसी भी रीजन की वजह से मल्टीपल कॉजेज हैं और इस वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा हो जाए, दैट इज कॉल्ड प्लूरिसी, ठीक है. उसमें होता क्या है, थिकन्ड एंड इन्फ्लेम्ड प्लूरल लेयर्स. दोनों प्लूरा पिस्टल एंड पेराटल की जो लेयर्स हैं वो थिकन हो जाते हैं, ठीक है. And they are rubbing against each other, producing certain sounds, ठीक है. That when you place a stethoscope for a patient, you are able to hear those sounds, ठीक है. Pleural space, ठीक है, और infected portion, ठीक है. So वो एक स्पेशल रब प्रोड्यूस करते हैं जब ये एरियाज जो प्लूरा जब इन्फ्लेम्ड होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक रब लाइक फीलिंग आती है. दोनों प्लूरल जब एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट होते हैं. ओके, नाउ सेकंड कंडीशन इज न्यूमोथोरिक्स. थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दे देती हूँ. न्यूमोथोरिक्स मींस एयर इन दी लंग्स, सॉरी एयर इन दी प्लूरल स्पेस, ठीक है. जो प्लूरल स्पेस है, प्लूरल कैविटी है, उसमें एयर आ जाए, ठीक है. एयर तो ऐसे लंग में होती है, सो दैट्स वाई अगर लंग्स के आउटसाइड भी बहुत ज़्यादा एयर हो जाती है, so it will cause collapsing of the lung because एक्सटर्नल प्रेशर इतना ज़्यादा है कि लंग का अपना जो प्रेशर है वो मेंटेन नहीं कर सकता, ठीक है. सो एयर लीक्स फ्रॉम द लंग्स इनटू द सराउंडिंग प्लूरल स्पेस, ठीक है. सो ये सारा का सारा जो है इट कॉजेज श्रिंकेज ऑफ द लंग्स. ये डिफरेंट इसके कॉजेज हैं, डिफरेंट इसकी क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं, वो बाद में आप लोग पढ़ेंगे. बट फॉर टुडे इतना याद रखें, न्यूमोथोरिक्स मींस, नीमो मींस एयर, थोरिक्स एयर इन दी thoracic cavity, ठीक है. Pleurisy, also known as pleuritis, is an inflammation of the pleura, the lining of the pleural cavity that is surrounding the lungs, ठीक है. जो प्लूरा है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, then it is known as pleurisy. साइन एंड सिम्टम्स क्या है, मतलब पेशेंट कैसे प्रेजेंट होता है, ठीक है. The main symptoms of the pleurisy is a sharp or stabbing pain in the chest, ठीक है. पेशेंट को बहुत ज़्यादा शार्प पेन फील होता है चेस्ट में. when he breathes deeply, ठीक है, he is coughing, he is sneezing और laughing, तो उसको जिस साइड पे इन्फ्लेमेशन है उस साइड पे बहुत ज़्यादा शार्प पेन फील होता है. The inflamed pleural layers rub against each other every time the lungs expand to breathe in air. जितने टाइम वो ब्रीथ करता है तो वो जो पेराइटल और विसरल लेयर आपस में इन कांटेक्ट आते हैं, उस टाइम जो है उसको शार्प पेन फील होता है बिकॉज ऑफ द रबिंग, ठीक है. दिस इज कॉल्ड प्लूरेटिक चेस्ट पेन. उसको प्लूरेटिक चेस्ट पेन कहते हैं. पेन या तो एक साइड पे एक ही जगह पे स्टे करेगा, और इट मे स्प्रेड टू द शोल्डर और बैक बिकॉज ऑफ द जहाँ जहाँ प्लूरा प्रेजेंट है उधर ही, ठीक है. और समटाइम्स इट बिकम्स अ फेयरली कॉन्स्टेंट डल एक, या तो हो सकता है कि शार्प ना हो और कंटिन्यूसली पेशेंट को एक जगह पर हल्का सा मामूली सा पेन हो, बट दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूसली, कांस्टेंट पेन हो, ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉज प्लूरिसी में बी अकम्पनीड बाय अदर सिम्टम. बहुत सारे डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं रिलेटेड टू प्लूरिसी, बट अकॉर्डिंगली जिस जिस टाइप की डिजीज हो, जिस वजह से हो, वो सारी. सो इट मे बी अकम्पनीड बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. पेशेंट को ब्रीथिंग में बहुत डिफिकल्टी होती है. कफ, फीवर एंड चिल्स, ठीक है. इन ये सारे सिम्टम्स अलॉन्ग विद अदर सिम्टम्स हो सकते हैं in pleurisy. Now coming towards lungs.
As you know, we have two lungs that are the organ of respiration and lie on either side of the mediastinum. Mediastinum means central. This central portion partition behind the sternum between two lungs is called mediastinum. इनके mediastinum के sides पे right lung और left lung आपके present होते हैं, surrounded by right and left pleural cavities. ठीक है, दोनों के side पे pleural cavities भी present होते हैं. Right lung is normally a little larger. Why? Because the left lung has got a heart in its center. ठीक है, मिडिल मीडियस्टिनम में हेयर जहाँ पॉइंटर मूव कर रहा है, ठीक है, ये आपको इस एक किस्म का ऐसे वो फील हो रहा है जैसे डिप्रेशन सा है ऑन द लेफ्ट लंग. दिस इज बिकॉज ऑफ द हार्ट, प्रेजेंस ऑफ हार्ट दैट इज पुशिंग द लंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड मोर. ठीक है, सो इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच. Cardiac notch is present on the left lung. ठीक है, so the left lung is bulging more to the left. The lung is bulging more to the left than to right. ठीक है, राइट में ऐसा कुछ भी कोई बल्ज वगैरह नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है. लेफ्ट में लेफ्ट का साइज थोड़ा सा छोटा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हार्ट. उसकी वजह से इसका साइज आपको थोड़ा सा स्मॉल नजर आ रहा होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक नॉच. Each lung has a half cone shape, conical shape. The lungs are conical shape, having a base. This is the base that rests on the diaphragm. Okay, apex. This is the apex that is protruding towards the neck. ठीक है, apex हो गया, नीचे base हो गया that is resting on the diaphragm, having two surfaces and three borders. ठीक है, कौन कौन से हैं हम बाद में पढ़ेंगे. The base sits on the diaphragm that is called diaphragmatic surface. The apex is projecting above the first rib. ये first rib के ऊपर की तरफ project करता है and to the root of the neck. ठीक है, so this is apex. This is apex here. This is base. This base is also called diaphragmatic surface. अब two surface हैं जिसको बोलते हैं costal surface and mediastinal surface. ठीक है, जो अभी हमने बेस पढ़ा उसको भी हम सरफेस में कुछ बुक्स में डाला हुआ, दैट इज कॉल्ड डायफ्रामेटिक सरफेस. बट कोस्टल सरफेस इज lying immediately adjacent to the ribs and intercostal space of the thoracic wall. ये दोनों साइड, ये दोनों आपको जो व्यू नज़र आ रहे हैं दोनों लंग्स के, ये है मीडियस्टर्नल सरफेस के. ठीक है, मतलब मीडियली आपको दोनों लंग्स दिखाए हुए हैं. हेयर यू कैन सी द कोस्टल सरफेस. ठीक है, जो मेंशन हुआ हुआ है ये वो वाला एरिया है लंग्स का जो कि कोस्टल कार्टिलेजेस की तरफ, रिब्स की तरफ और इंटरकोस्टल स्पेसिस की तरफ प्रोजेक्ट करता है. मींस द पोर्शन ऑफ द लंग दैट इज फेसिंग टू द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक केज की तरफ जो फेस करता है उसको बोलते हैं कोस्टल सरफेस. एंड इन द सेंटर जो फेस करता है मीडियल सरफेस पे, मीडियल साइड पे, दैट इज द मीडियस्टर्नल सरफेस. इट लाइज अगेंस्ट द मीडियस्टर्नम anteriorly mediastinum and vertebral column posteriorly, and contains a comma shaped hilum of the lung through which structures enter and leave the lung. जो हमने पहले पढ़ा, this is the hilum of the lung. Here these structures means pulmonary veins, pulmonary arteries and lymphatics, जो bronchi वगैरह सब enter और निकल रहे होते हैं. ठीक है, so this is the diaphragmatic surface here and here. ये आपके पास है कोस्टल सरफेस और ये जो सामने से आपको नजर आ रहे हैं दीज आर दी मीडियस्टर्नल सरफेसेस. थ्री बॉर्डर्स हमने पढ़े कि थ्री बॉर्डर्स हैं इसके. ठीक है, सो हेयर इट इज द एंटीरियर बॉर्डर विच इज इन प्रेजेंट इन फ्रंट जस्ट बिहाइंड स्टर्नम. ठीक है, एंड हेयर इज पोस्टीरियर बॉर्डर विच इज लाइंग जस्ट नियर टू द वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, सो पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, और ये जो आपको डायफ्रामेटिक सरफेस के को कवर करता हुआ एक थिन सा बॉर्डर नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इंफीरियर बॉर्डर. दिस इज इंफीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर के बीच में डायफ्रामेटिक सरफेस है और बेस है. ये आपका थिन सा इंटीरियर बॉर्डर है और ये आपका पोस्टीरियर बॉर्डर है. ठीक है, राउंडेड. थ्री बॉर्डर्स, inferior border of the lung is sharp and separates the base from the costal surface. This inferior border is separating this diaphragmatic surface from costal surface. So this is the inferior border. The anterior and posterior borders separate the costal surface from the medial surface. ये anterior surface है, ये posterior surface है. ठीक है, ये इस costal surface को इस mediastinal से separate कर रहा है. ठीक है, here and here means
पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में मीडिएस्टर्नल सरफेस है और कॉस्टल सरफेस है लैटरली। अनलाइक द एंटीरियर एंड इंफीरियर बॉर्डर विच आर शार्प, एंटीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर शार्प है, पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा राउंडेड है। रूट एंड हाइलम ऑफ द लंग, ओके। The root of each lung is a short tubular collection of structures that together attach the lung to the structures in the mediastinum, ठीक है। ये पूरा जो मैंने आपको लास्ट उसमें बताया पल्मोनरी लिगामेंट जब पढ़ रहे थे उसमें, दिस होल इज द रूट ऑफ द लंग, ठीक है। द स्लीव लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कवर्ड बाय प्लूरा व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द विस्ट्रल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा जब विस्ट्रल प्लूरा का कांटेक्ट में आता है हियर at the medial surface of the lung, a root is formed that is this sleeve like structure is formed that is called root. अब इसमें ये वाला जो एरिया है this is hilum. Hilum is the area where the structures are entering and leaving the lung, ठीक है, and all the structures are attaching this lung to the structures present in the mediastinum. means bronchus bronchi है तो वो मेन ब्रोंकस से लंग को अटैच कर रहा है, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स हैं, पल्मोनरी आर्टरीज हैं, एटसेट्रा। ये हाइलम। और ये जो आपको डाउनवर्ड फोल्ड नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी लिगामेंट एंड दिस लोअर पोर्शन इज कॉल्ड फेल्सिफॉर्म मार्जिन। नाउ स्ट्रक्चर्स, वो स्ट्रक्चर्स जो कि रूट ऑफ द लंग पे और हाइलम ऑफ द लंग पे प्रेजेंट होते हैं। एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, दी कौन सी वाली होगी, ब्लू वन, ठीक है। So pulmonary arteries. This one is the pulmonary artery here, the blue one. Two pulmonary veins, the red one. ठीक है, pulmonary veins are the red one here and here. A main bronchus. Okay, main bronchus. This one. Bronchial vessels हैं छोटे छोटे जो कि blood vessels होते हैं, nerves होती हैं और lymphatics होते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे जो ब्रोंको पल्मोनरी लिम्फ नोड्स हैं ये नजर आ रहे हैं। सो मींस hilum of the lung contains artery, pulmonary veins, bronchus, bronchial vessels, nerves and lymphatics. These are the structures of present at the root of the lung. Now structure of the right lung, it is divided into upper, middle and lower lobe. ये आपका right lung का upper लोब है, ये मिडिल लोब है और ये inferior लोब है, ओके। इसमें एक्चुअली यू आर हैविंग टू फिशर्स। फिशर्स आई टोल्ड यू डीपनिंग ऑफ द कट, कि डीप कट लगा हुआ है अब लंग्स में अंदर, ठीक है, जो कि लंग्स की इंटीरियर साइड तक, इंटीरियर मींस इंटरनल साइड तक गया हुआ है, that those are called fissures. So right lung has got two fissures. This is the horizontal fissure lying horizontally and this is the oblique fissure going from the base toward the posterior border, ठीक है। inferior border से posterior border की तरफ जा रहा है, this is the oblique fissure. So dividing the right lung into superior border और upper border, middle border and inferior or lower border, ठीक है। left lung में एक ही fissure है, that is the oblique fissure here going from inferior border to posterior border. So dividing this lung into upper lobe and lower lobe. Okay, read about the right and left lung relations and lung impression. Here, जो स्ट्रक्चर जो है वो लंग्स के साथ मीडियली इन कांटेक्ट होंगे उसका अपना अपना प्रॉपर जो है वो इम्प्रेशन बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्रूव फॉर फर्स्ट रिब, सुपीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, inferior vena cava impression and एजाइगस आर्च, हेयर एजाइगस आर्च, ठीक है। ये सारे लंग के इम्प्रेशन जो है वो बनाते हैं, लंग पे इम्प्रेशन बनाते हैं जो कि राइट लंग के साथ इन कांटेक्ट होते हैं, ठीक है। ये सारी स्ट्रक्चर जो है सिमिलरली लेफ्ट मीडियल सरफेस ऑफ द लेफ्ट लंग पे अपने इंप्रेशंस होते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा, हेयर लेफ्ट वेंट्रिकल, हेयर डायफ्राम एंड हेयर इम्प्रेशन फॉर आयोटिक आर्च, ठीक है। ये सारे अपने अपने इम्प्रेशंस लेफ्ट लंग पे बनाते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द ब्रोंकियल ट्री। नाउ द ब्रोंकियल ट्री, द ट्रेकिया, as you have already studied about the trachea, it is divided into two bronchi, ठीक है, two bronchi. The main bronchus divides within the lung into lobar bronchi.
फिर मेन ब्रोंकस जो है वो फिर लोअर ब्रोंकाई बनाता है। द लोअर ब्रोंकाई डिवाइड इनटू सेगमेंटल ब्रोंकाई एंड सेगमेंटल ब्रोंकाई सप्लाई ईच ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। A bronchopulmonary segment within a bronchopulmonary segment, the segmental bronchi divides into bronchioles, which further subdivide and redivide and supply the respiratory surfaces and end at the alveoli, alveolar sacs. ठीक है, so trachea, main bronchi, ठीक है, अगेन दीज आर दी सेगमेंटल ब्रोंकाई, ठीक है, जो कलर्ड कलर्ड आपको नजर आ रहे हैं। देन दीज आर दी हेयर, हेयर एंड हेयर, ठीक है, जो कि आपके ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को सप्लाई करते हैं। एंड विद इन द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट दे डिवाइड एंड रीडिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स एंड एट द alveolar sacs. Bronchopulmonary segments, bronchopulmonary segment, there are 10 bronchopulmonary segments in each lung, ठीक है, 10 on the right side, 10 on the left side. What is bronchopulmonary segment? It is actually a separate section, like an independent unit of the lung. That is an anatomical, functional and surgical unit of the lung. ठीक है, हर एक bronchopulmonary segment की अपनी nerve supply है, अपनी ब्लड सप्लाई है, ठीक है, अपनी venous drainage है, lymphatic drainage है। ये it means कि if any of the bronchopulmonary segments get diseased, you can remove it surgically from the lung, ठीक है, अलग से उसको निकाल के रिमूव कर सकते हैं if any bronchopulmonary segment got disease, ठीक है। Each bronchopulmonary segment is shaped like an irregular cone, ठीक है, cone like shape होती है जिसमें उसका जो apex होता है वो that is present at the origin of the segmental bronchus and the base is projected peripherally into the surface of the lung, ठीक है। So these are, this was introduction about the bronchopulmonary segment. Now it is the smallest in functionally independent region of the lung and the smallest area of the lung that can be isolated and removed without affecting another adjacent regions. These are the bronchopulmonary segments, that is the right side, the left side of the lung, ठीक है। Right side में you are having superior lobe, so three bronchopulmonary segments present in superior lobe, apical, posterior and anterior, ठीक है। Middle lobe में दो हैं, lateral, medial, and all the purple, this five, these five purple colored में जो लिखा हुआ है, these are present in the lower lobe, inferior lobe, ठीक है। Apical, medial, posterior basal, lateral basal and anterior basal, these are the bronchopulmonary segments of the right side of the inferior lobe of the lung, ठीक है। Similarly, left lung has got superior lobe and inferior lobe. So superior lobe has got apical, posterior, anterior, superior and inferior bronchopulmonary segments, and the inferior lobe has got anterior basal, medial basal, lateral basal and posterior basal bronchopulmonary segments. So 10 on the right side, 10 on the right side and 10 on the left side, ठीक है। एक mnemonic है, if you can remember it, so ये आपको थोड़ी सी help out कर सकता है। Now blood supply of the lung. The bronchi and parenchymal tissue of the lungs are supplied by bronchial arteries, ठीक है। जो ब्रोंकाई है और पेरेन्काइमल टिश्यू जो लंग का है, ठीक है, स्ट्रक्चर का, लंग का स्ट्रक्चर जो है, दीज आर सप्लाइड ब्रोंकियल आर्टरीज, ठीक है, विच आर ब्रांचेज ऑफ डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा। थोरेसिक डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा जो है वो ब्रांचेज देती हैं, तो वो सारी सप्लाई करती है इन एरियाज को। ब्रोंकियल वेन्स विच आल्सो कम्युनिकेट विद पल्मोनरी वेन्स ड्रेन इनटू द एजाइगस एंड हेमीजाइगस। वीनस ड्रेनेज जो है वो होती है थ्रू ब्रोंकियल वेन्स, and these also communicate with pulmonary veins and also drain into the azygous or hemizygous system of veins. Lymphatic drainage is lymph returns from the periphery towards the hilar tracheobronchial groups of lymph nodes and from here to mediastinal lymph trunks, ठीक है। ये सारा पेरिफेरल मीन्स जो लंग्स का इंटरनल पोर्शन है उससे lymph node जो है वो ड्रेन होते हैं, किसमें, tracheobronchial lymph node. These are tracheobronchial. Tracheobronchial का मतलब है here at the junction of the at the division of the trachea to the bronchi, इधर आपके पास present होते हैं tracheobronchial lymph nodes। उसमें
ड्रेन होते हैं, और फिर मीडियस्टल ट्रंक्स में जितने भी ये सारे हैं उसमें ड्रेन होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द रिपेटिव ड्रेनेज ऑफ द लंग। Nerve supply. I told you earlier when we were discussing the nerve supply of the pleura that a pulmonary plexus is located at the root of each lung. ठीक है, lung root पे pulmonary plexus present है, that is formed by sympathetic fibers and parasympathetic fibers. ठीक है, sympathetic fibers are coming from the sympathetic trunk and parasympathetic fibers are coming from the vagus nerve. ठीक है, so इसमें आपको जितने भी सेंसेशंस हैं सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, वो पल्मोनरी प्लेक्सस के थ्रू इस लंग को सप्लाई होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी टुडेज लेक्चर। थैंक यू।